Church Shalom, कलीसिया शालोम, blessings and greetings to you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. आशीष और अभिवादन आप लोगों को प्रभु यीशु के मधुर नाम से। Today, with the help of the sweet Holy Spirit, आज के दिन प्रभु पवित्र आत्मा के मदद से we will see Angels Part 2. हम देखेंगे स्वर्गदूत का दूसरा भाग। So let us pray. Father, we give this teaching to you, Lord, surrender my wife and myself to you. Cover our spirits of body, mind, mouth, tongue with your blood, your word, the power of your Holy Spirit. Sweetest Holy Spirit, we welcome you. You are a beloved teacher, a guide, a friend. Lord, lead and guide and teach us, Lord God. And let this teaching bring blessings to all your saints, and the name of Jesus be glorified. Let God's perfect will be done. Let His word bear great fruits, Holy Father. Thank and bless you, Father. In Jesus' name. Amen. So we see over here the characteristic of angels हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वर्गदूतों का स्वभाव and the ministry of angels in the life of Lord Jesus Christ. और स्वर्गदूतों का कार्य प्रभु यीशु के जीवन में। It will give us wonderful understanding and new teaching ये हमें अच्छी समझ देगा और एक नया ज्ञान देगा about the ministry of the angels. कि स्वर्गदूत का कार्य, उनका सेविकाई कैसे होती है। The first point is angels are very strong. पहला भाग ये है कि स्वर्गदूत लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। 2 Kings 19 verse 35. 2 राजा का 19 अध्याय 35 वचन। It says that an angel of the Lord went out उसमें लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत बाहर गया and he went to the Assyrian army camp. और असीरिया के सेना के पास गया। He killed 1,85,000 of the enemies. और उसने 1,85,000 दुश्मनों को मार गिराया। But one angel killing 1,85,000 Assyrian army men. एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को मारा। We have more than one angel. और हमारे पास एक स्वर्गदूत से ज्यादा स्वर्गदूत है। Psalm 91 verse 7 says, प्रकाश भजन संहिता 91:7 कहता है that 1,000 will fall at your side, कि 1,000 तुम्हारे बाजू में गिरेंगे 10,000 at your right hand, और 10,000 तुम्हारी दाहिनी ओर गिरेंगे, but it will not come near you. लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। Why? क्यों? Because your angel is there to protect you. क्योंकि स्वर्गदूत है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। That is what verse 11 says. और वही वचन 11 में लिखा है He will command his angels concerning you. कि वो उसकी स्वर्गदूत को आज्ञा देगा तुम्हारे लिए, To guard you in all your way. तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर मार्ग में, तुम्हारे हर मार्ग में। So one angel destroyed 1,85,000. एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों का नाश किया। So what is 1,000 and 10,000 before him? तो उनके सामने 10,000 और 1,000 क्या बात है? Because क्योंकि you believe in Jesus Christ. क्योंकि तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो, You have made him your Lord and Savior. तुमने उसे अपना उद्धारकर्ता माना है। John 1 verse 12 says योना का 1 अध्याय 12 वचन कहता है that those who believe in कि Jesus, जो परमेश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं they have become the sons of God. वो परमेश्वर के बेटे बन गए। Second point we'll see, दूसरा भाग ये देखेंगे, we saw angels are very strong in the first point. हमने देखा कि स्वर्गदूत बहुत शक्तिशाली है पहले भाग में। Now we'll see angels, the second point, angels carry authority और हम देखेंगे कि स्वर्गदूत के पास अधिकार है based on the responsibilities and rank. जो उनकी जिम्मेदारी और पद के अनुसार। So in Luke 1 verse 18 to 21, तो लूका का 1 अध्याय 18 से 21 वचन, God is sending Gabriel angel to Zachariah the priest. परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत को जकारे के पास, जो एक याजक है, उसके पास भेजता है To tell him the good news that he is going to become a father. उसको ये सुसमाचार देने के लिए कि वो अभी पिता बनने वाला है। Because Zachariah and Elizabeth, they were barren. क्योंकि जकारिया और एलिजाबेथ का कोई संतान नहीं था। And when Gabriel angel tells him, और जब जिब्राइल उससे कहता है, he says in Luke 1 verse 18 to 21, वो कहता तो Luka लूका का 1 अध्याय 18 से 18 से 21 में कहता है, he says he doesn't believe him. तो जकरिया उस पर विश्वास नहीं करता है। And then Gabriel angel tells him, और तभी
जिब्राइल स्वर्गदूत उससे कहता that I है have come from the presence of God, कि मैं परमेश्वर के सामने से आया हूँ, and because you have not believed my word, और तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, today onwards you will be dumb. आज से तुम गूंगे हो जाओगे। And if you see that in verse 21 onwards, और आप अगर देखेंगे कि 21 वचन से till verse 62 onwards, तो 62 वचन तक Zechariah becomes dumb. जकारिया गूंगा हो गया। Until John the Baptist was born, और तब तक गूंगा था जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म हुआ। and he calls the people to give a slate and writes his name John. और जकारिया ने लोगों को बुलाया और एक पट्टी पर लिखा कि यूहन्ना। So when that prophecy was fulfilled, his mouth was loosened तो जब भविष्यवाणी का पूरा हुआ तभी उसका मुंह खुल गया and he began to praise God. और वो प्रभु की स्तुति करने लगा। So you see, angels carry authority, हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के पास इतना अधिकार होता है, and God has kept an angel for every church of his. और परमेश्वर ने हर एक कलीसिया के लिए स्वर्गदूत रखा है। We saw last time in Revelation chapter 2 and 3. गए बार हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 2 और 3 का अध्याय में, And in Revelation 2 verse 1 it says, और प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है he sent the message to the angel of Ephesus. कि उसने एफिसस के कलीसिया के लिए एक संदेश भेजा। To the angel of Ephesus. हाँ, एफिसस के स्वर्गदूत के द्वारा। And these angels would be happy to cooperate with us, beloved. और ये स्वर्गदूत बहुत खुश होते हैं हमारे साथ सहभागी बनने के लिए। So now we'll go to see the third point. और अब तीसरा भाग देखेंगे। We saw angels carrying authority, the second point. हमने दूसरी भाग में ये देखा कि स्वर्गदूत के पास अधिकार है। Now we'll see angels are very powerful in the third point. और हम अब देखेंगे कि स्वर्गदूत अति सामर्थी होते हैं। They are very, very powerful. वे अति सामर्थी होते हैं। In Revelation 20 verse 1 to 3, इन प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय 1 से 3 वचन में it says, an angel of the Lord went with chains ऐसा लिखा है कि एक परमेश्वर का स्वर्गदूत, प्रकाशित वाक्य का 20 1 से 3 ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसके हाथ में अथक कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने शाम को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ा और 1000 वर्ष के लिए जंजीर से बांध दिया। उसने उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाएगा। So we see over here how powerful is an angel. He just comes with the chain and ties Satan. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कि एक स्वर्गदूत कितना सामर्थ्य है, वो वैसे ऐसे ही आता है और शैतान को जंजीर से बांध देता है। And the devil cannot move and cannot do anything. और शैतान हिल नहीं सकता और कुछ कर नहीं पाता है। And even nothing is mentioned of the angel, nor his name, nor his rank. और इस स्वर्गदूत के बारे में कुछ लिखा नहीं कि उसका पद क्या था, उसका नाम क्या था। Beloved, these are our friends. प्रियो, ये हमारे दोस्त है। And they want to long to minister together with us for the glory of Lord Jesus Christ. और ये उनकी इच्छा ये है कि वे हमारे साथ सहभागी होके प्रभु यीशु की सेविकाई करे। Hallelujah. हालेलुया। And one of the name of Jesus is the Lord of Hosts. और प्रभु यीशु का एक नाम है सेनाओं का प्रभु। In Joshua 5:13 to 15 we see that. यीशु 5 to 13, 5 chapter 5 13 to 15 verse. 5 अध्याय 13 से 15 वचन में देखते हैं। We have heard about the victory of Jericho. हमने यरीको की जीत के बारे में सुना है। And here Joshua come near the city of Jericho. और यहोशू जेरिको के नगर के पास आता है। And suddenly he sees an angel with a sword. और वो अचानक एक स्वर्गदूत को देखता है जिसके हाथ में
तलवार होती है। And he goes and asks him, are you for us or are you against और us? उससे जाकर पूछता है कि तू हमारे साथ है या हमारे विरुद्ध में है। And the angel tells him, और I'm the commander of the Lord's army. और वो स्वर्गदूत कहता है कि मैं परमेश्वर की सेना का प्रधान हूँ। And then Joshua falls at his feet and worships him. और तभी यहोशू उसके पैरों पर गिरकर उसकी आराधना करता है। And then Joshua asks him, what message, my Lord, you have brought? और तब यहोशू पूछता है कि क्या संदेश लाया है मेरे प्रभु ने। He said, remove your sandals, because the place where standing is holy. वो कहता है कि तू तेरे जो पैरों की जूती है उसको निकाल, क्योंकि जो जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र है। And Joshua just worships him. और यहोशू उसकी आराधना करता है। Beloved, who was this? प्रियो, ये कौन था? This is Jesus Christ in the incarnate form, the Lord of hosts. ये प्रभु यीशु था जो सेनाओं का यहोवा है। And we should understand now in this problematic situation all over the world. और हमको ये जानना है कि ये जो समस्या के जो चलते हुए इस दुनिया में, the battle belongs to the Lord. हाँ, ये युद्ध पर प्रभु का है। Because Joshua relaxed. क्योंकि यहोशू आराम से हो गया। And the battle was fought by the Lord of hosts. और जो युद्ध था उसको प्रभु सेनाओं का प्रभु ने लड़ा। And they got a victory, beloved. और उनको जीत मिल गई। Hallelujah. हालेलुया। So we see one of the name is Lord of hosts. और हम देखते हैं कि एक नाम है यहोवा, सेनाओं का यहोवा। Because all the angels are subjected to our Lord Jesus Christ. क्योंकि सारे जो स्वर्गदूत है वो प्रभु यीशु के अंदर है, नीचे है। We love and serve and obey Jesus. क्योंकि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और उसकी सेविकाई करते हैं। He will send his angels for us. इसलिए वो उसके स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजेगा। Also one more thing we see over here. और हम एक बात और देखते हैं यहाँ पर, How God directs his angel to protect Jesus from King Herod. कि प्रभु कैसे परमेश्वर उसकी जो स्वर्गदूत को भेजता है प्रभु यीशु को के जीवन को बचाने के लिए From King Herod. राजा हेरोद से। So if you see in Matthew 2:13 and 14. अगर हम देखेंगे कि मत्ती 2 in 13 and 14. 13 और 14 and Matthew 2:19 and 20. और मत्ती 2 19 and 20. 19 और 20 we'll read over here. हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 13 वचन कहता है, ज्योतिषियों के चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत यूसुफ को दिखाई दिया। उसने यूसुफ से कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक तू वहीं रहना, क्योंकि राजा हेरोदेस इस बालक को मार डालने के लिए इसको ढूंढने वाला है। 14 वचन कहता है, यूसुफ रात को उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया। So you see, beloved, over here, as God sent the angel and the angel directed Joseph. तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने यूसुफ को आदेश दिया। And Joseph obeyed and the life of Jesus got saved from the attack of King Herod. और यूसुफ ने उसकी बात मान ली और प्रभु यीशु का जीवन हेरोदेस के आक्रमण से बच गया। In the same way, when Herod died, in Matthew 2:19 and 20 we see. और उसी तरह जब हेरोद का देहांत हो गया, मत्ती 2:19 और 20 में हम देखते हैं। Then the angel tells Joseph, go back to that place. Now King Herod is dead. तो स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है कि तू उस जगह पर वापस चले जाओ, क्योंकि हेरोद मर चुका है। So what do we see? The angel direct God's people. तो हम ये देखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों को निर्देश देता है। And see, the life of Jesus got saved over here. और देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन बच गया। Now we see angels are messengers bringing direction from God. हम देखते हैं कि स्वर्गदूत है परमेश्वर का संदेश लेकर मनुष्य के पास आते हैं। We see a wonderful incident in Acts 10 verse 1 to 4. हम एक बहुत ही अच्छा जो बात हुई है प्रेरितों के कार्य में
10, verses 1 to 4, 10 अध्याय 1 से 4 वचन, we see that there was a man called Cornelius, a just man, और हमने देखा कि एक कॉर्नेलियस एक मनुष्य था, and he used to pray and give to the poor, Jewish poor people. और वो गरीबों को, जो यहूदी गरीब थे, उनको दान देता था, He was a praying man. और वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। He was not a believer, Gentile. वो एक विश्वासी नहीं था, लेकिन अन्य जाति वाला था। And God saw in heaven और परमेश्वर ने स्वर्ग में देखा, his prayer and his offering to the poor came before the Lord in heaven. और उसकी प्रार्थना और उसकी जो दान है वो परमेश्वर के सामने आई। And God sent an angel to the house of Cornelius. और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को कॉर्नेलियस के घर में भेजा। And then the angel went and met Peter also. और वही स्वर्गदूत जाकर पतरस से भी मिला। And Peter went and preached to Cornelius. और पतरस ने जाकर कॉर्नेलियस को सुसमाचार सुनाया। And this was the first time that God used an angel and a Gentile was preached the gospel. और ये पहली बार है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और जो सुसमाचार था वो अन्य जातियों को सुनाया गया। And today we are also a recipient because we were also Gentiles. और हम आज के दिन हम भी अन्य जाति के लोग हैं और हमको इसका ये लाभ हुआ। So we see the ministry of the angel is so important in preaching the gospel. तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत की जो सेविकाई है सुसमाचार के सुनाने में, वो कितना महत्वपूर्ण कार्य है उनका। We'll see the next point, beloved. हम दूसरा भाग देखेंगे। This is angels are very, very glorious. और ये देखेंगे कि स्वर्गदूत जो है वो बहुत महिमापूर्ण है। We see in Revelation 19 verse 10. हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय 10 वचन में, And Revelation 22 verse 8 and 9. और प्रकाशित वाक्य 22 का 8 और 9 वचन, That when Apostle John saw the glory of the angel in heaven, जब प्रेरित योना ने स्वर्गदूत का जो महिमा है उसको देखा, he fell and worshipped them. उसने उसके सामने गिरकर दंडवत किया। Because the angel carried such an awesome glory, beloved. क्योंकि वो स्वर्गदूत पर इतनी महिमा थी। And one day we also will carry an awesome glory. और एक दिन हम भी एक ऐसी महिमा को लेकर चलेंगे। When we are raptured. जब हमारा स्वर्गरोहण होगा। So now, as John was bowing before the angel, और जैसे योना उस स्वर्गदूत के सामने झुका, this angel told him, "Don't bow down before me." ये स्वर्गदूत ने कहा, मेरे सामने दंडवत मत करना। We will read that scripture, beloved. हम उस वचन को पढ़ेंगे। Revelation 22, प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय 8 and 9. 8 और 9 वचन। मैं वही यूहन्ना हूँ जिसने ये बातें सुनी और देखी है। जब मैंने ये सुना और देखा, तब जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखा रहा था, मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई नबियों और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी सेवक हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। Hallelujah. Hallelujah. So, beloved, this angel is telling John, "No, I am a fellow brother of yours." तो हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत योना से कहता है कि मैं तेरे साथ एक संगी सेवक हूँ। Because you are also preaching the gospel, and I also want to be a partake of this gospel. हाँ, क्योंकि तू सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और मुझे भी इस सुसमाचार में के प्रचार इसमें मुझे भाग लेना You है। also serving the same Lord. I am also serving the same Lord. तू भी उसी परमेश्वर की सेवा करता है, उसकी सेवा मैं भी करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So we saw over here तो हमने ये देखा that angels are very strong. कि परमेश्वर स्वर्गदूत बहुत शक्तिशाली है, अति सामर्थ्य है। Angels carry authority. उनके पास अधिकार है। And angels are very, very powerful. और उनमें सामर्थ्य है। Then we saw one of the name of the Lord is the Lord of hosts. और हमने देखा कि परमेश्वर का एक नाम है कि सेनाओं का यहोवा। Because he controls over all the angels, cherubim, seraphim, everybody. क्योंकि वो करूब सारे करूब
और सराफिम और सारे स्वर्गदूतों पर अधिकार रखता है। Yeah. So also we saw how angels directed Joseph. और हमने ये भी देखा कि स्वर्गदूतों ने कैसे यूसुफ को निर्देशन दिया And how they brought message to Cornelius and to Peter. और उन्होंने कैसे वो संदेश दिया कर्नेलियस और पतरस के पास। And the gospel was preached because of their effort to the Gentiles. और सुसमाचार का प्रचार हुआ अन्य जातियों के लिए। There are so many things to talk, beloved. इतनी सारी बातें हैं करने के लिए। We are just talking in a nutshell. हम बहुत छोटी बात, बहुत कम बात कर सकते हैं अब। Okay. Then we saw how the angels are glorious. हमने देखा कि कैसे स्वर्गदूत महिमापूर्ण है। And even John was very surprised by their glory. और यूहन्ना भी बहुत अचंभित हुआ उनकी महिमा देखकर। Okay. Now let's see how the ministry of the angel in the life of Jesus Christ. और अब देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में स्वर्गदूतों की सेविकाई। So the first thing we'll see, तो पहली बात हम देखेंगे the angel foretelling the birth of Jesus Christ. कि स्वर्गदूत प्रभु यीशु के जन्म के बारे में कहता है। We have heard this many times, Luke 1:26 to 35. हमने बहुत बार सुना है लूका का 1:25 से 26 तक। From 26 to 35. सॉरी 26 से 35 वचन तक। Okay. But we'll read today two verses 32 and 33. पर हम आज सिर्फ 2 वचन पढ़ेंगे। लूका 1:32 और 33। लूका 1:32 कहता है, वह महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पूर्वज राजा दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के वंश पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। So, beloved, here we see 4 to 5 things. और प्रिय, हम यहाँ पे 4 से 5 बातें देखते हैं। It says he is great. यहाँ कहता है कि वो महान है, He is the Son of God, वो परमेश्वर का पुत्र है and his name will be Jesus. और उसका नाम यीशु होगा, That is the Redeemer. वो छुटकारा देने वाला होगा। Then he says he will rule over the throne of David. और ये कहता है कि वो दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा। He will reign over the house of Israel, वो इजराइल के घराने पे राज्य करेगा and his kingdom will never end. और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। Now, beloved, अभी प्रियो, we have to understand one thing. हमको ये समझने की जरूरत है, एक बात समझने की जरूरत है। Today, Jesus is sitting on the throne of his Father. आज प्रभु यीशु उसके पिता के सिंहासन पर बैठा है। He has not yet sat over the throne of David. वो अभी तक उसने दाऊद के राज्य सिंहासन पर बैठा नहीं है। He has not yet reigned over the house of वो Israel. अभी तक उसने इजराइल के घराना पर राज नहीं किया So है। these two things has to be achieved on this earth. और ये 2 बातें इस धरती पर, इस संसार में होने की बाकी है। Then his earthly kingdom will be established. और तभी उसके सांसारिक राज्य का स्थापना होगा। Then there he will establish a new Jerusalem on earth. तभी वो नया यरूशलेम इस धरती पर स्थापित करेगा। We don't have much time to go in detail. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है एकदम ज्यादा बातें बोलने के लिए। So we are just speaking in small few words. तो थोड़ी बातें हम कह रहे हैं। So you see, the Gabriel angel also prophesying. और जिब्राइल जो स्वर्गदूत है वो भविष्यवाणी दे रहा है यहाँ पे। Hallelujah. हालेलुया। So we see the ministry of the angels. तो हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूतों की जो सेविकाई। Now the second point we'll see, दूसरा भाग ये देखेंगे, angel advising Joseph to take the right decision. और जो स्वर्गदूत यूसुफ को सही बात करने के लिए वो उसे निर्देशन देता है। Now beloved, when Joseph came to know that Mary had a baby, जब यूसुफ को समझ में आया कि मरियम पेट से है, he thought of leaving her quietly. उसने सोचा कि मैं उसे चुपचाप छोड़ दूंगा। But the angel of God went to him. लेकिन स्वर्गदूत उसके पास गया। This is in Matthew 1:18 to 21. ये मत्ती 1:18 से 21 वचन में लिखा है। And told him, this is from God. और स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि ये परमेश्वर की तरफ से है। And his name should be Jesus. और उसका नाम यीशु होगा। Because he will save his people from their sins. क्योंकि वो उसके लोगों को पाप से बचाएगा। And this
marriage was about to be broken, the angel saved the marriage. और ये जो शादी जो बंधन था वो जो टूटने वाला था वो स्वर्गदूत ने उसको बचाया. So the angel come to give good advice. तो स्वर्गदूत अच्छा संदेश देने के लिए आया. Now you already know about the three wise men. अभी आप लोग जानते हैं तीन ज्ञानी व्यक्ति जो पूर्व से आए. We always hear the story during the time of Christmas, etc. हम हमेशा क्रिसमस के वक्त इस स्टोरी को सुनते हैं. And it says the star was guiding them. और उसमें ऐसा लिखा है कि एक तारा उनको मार्गदर्शन कर रहा था. Now we saw last time in Judges 5:20. और हमने गई बात देखा न्यायों का 5 अध्याय 20 वचन में. So the stars are the angels. तो वो जो तारे हैं वो स्वर्गदूत है. So even the angels function like stars. तो जो स्वर्गदूत है वो तारों की तरह काम करते हैं. Now we'll see the fourth point, which is very fantastic. और जो चौथा भाग है वो हम देखेंगे जो बहुत ही अच्छा है. This is Luke 2. ये लूका का 2 अध्याय from 8 to 14. 8 से 14. It says the angel proclaimed the glorious good news of Lord Jesus Christ on earth. तो हम देखते हैं लूका का 2 अध्याय 8 से 14 में कैसे स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु के जन्म के बारे में घोषणा की. So we see over here the angels came and met the shepherds. तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आए और उन चरवाहों से मिले. And it says in verse 9, the glory of God is shining both of the Lord and the angels. तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की महिमा चमक रही थी. And the first thing the angel said in verse 10, और जो पहली बात जो 10वें वचन में स्वर्गदूत ने कहा, do not be afraid. कि घबरा मत. I bring you good news. हम सुसमाचार लाए हैं. Of great joy. एकदम खुशी के सुसमाचार. That will be to all mankind. और सारे मनुष्य के लिए होगा ये. Because there is born to you. क्योंकि in the city of David. दाऊद के शहर में. A Savior who is Messiah the Lord. एक उद्धारकर्ता जो मसीह प्रभु है. And verse 13 says very wonderfully. और 13 वचन बहुत सुंदर तरीके से कहता है. Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host. अचानक वो स्वर्गदूतों के साथ एक बहुत ज्यादा मात्रा में एक पूरा सेना जैसे थी स्वर्गदूतों की. And they were praising God. और वे सारे स्वर्गदूत प्रभु की स्तुति कर रहे थे. And what they were saying? और उन लोग क्या कह रहे थे? Glory to God in the highest. कि प्रभु परमेश्वर की महिमा हो. And shalom on earth. और शांति इस दुनिया में. Because the meaning of shalom is peace, joy, blessing, prosperity. क्योंकि शालोम का मतलब है शांति, आनंद और आशीष. And goodwill towards man. और मनुष्य के प्रति परमेश्वर की शुभ इच्छा. Now what is this goodwill? और ये शुभ इच्छा क्या है? Satan the bad angel. जो शैतान जो बुरा स्वर्गदूत था. He deceived Adam and Eve. उसने आदम और हवा को भरमाया. And brought the bad will. और उसने वो बुरी इच्छा. It's because by separating God and mankind brought sin and death. क्योंकि उसने मनुष्य और परमेश्वर को विभाजन करके मौत और पाप को लाया. Sickness, etc. बीमारी और पाप सारी चीजें को लाया. Now the angels knew this. और ये स्वर्गदूत ये सब जानते थे. That the Savior is born today. कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है. And there will be peace, joy, blessing on earth. और संसार में शांति आनंद होगा. So the angel knew this. Only Jesus can bring this. तो स्वर्गदूत जानते थे कि सिर्फ प्रभु यीशु ये कर सकता है. That is why so many angels came on earth to praise God. इसलिए इतने सारे स्वर्गदूत ने आए स्तुति करने के लिए परमेश्वर की. That's what happened in praise and worship also sometime. और ऐसे ही प्रभु प्रेज एंड वर्शिप में ऐसे ही होता है. Now we'll see the ministry of the angel in the Lord's ministry work. हम देखेंगे कि स्वर्गदूत का जो सेविकाई प्रभु यीशु के जीवन में. We have also known that the temptation of Jesus so many times.
हमने बहुत बार सुना है प्रभु यीशु के परीक्षा के बारे में। Now, actually it was a long test, beloved, सच्चाई में ये जो परीक्षा थी वो बहुत लंबी थी and Jesus was tired and hungry and so many things. और प्रभु यीशु बहुत थक गए थे, भूखे हुए थे। और You know, he was fasting for 40 days and 40 nights. आप जानते हैं कि वो 40 दिन और 40 रात तक उसने उपवास की। It says in Matthew 4:11, मत्ती के 4:11 में लिखा है, then the devil left him, और शैतान निकल गया वहां से, and behold, angels came and ministered to him. और स्वर्गदूत ने आकर प्रभु यीशु की सेविकाई की। They refreshed him. उन्होंने उसे तरोताजा किया। Hallelujah. हालेलुया। Okay, now the second point we'll see in Luke 22, और दूसरा जो भाग है वो देखेंगे कि लूका 22 42 to 44. 42 से 44 Says, Father, if you are willing, remove this cup from me. कहता है कि पिता, अगर आप तैयार है तो इस कटोरे को मेरे पास से निकाल, Nevertheless, not my will, but yours will be done. लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा हो जाए। And verse 43 says, और 43 वचन में ये कहता है, an angel from heaven appeared to him एक स्वर्गदूत आया स्वर्ग से और उसके सामने आया and strengthening him. और उसे ताकत दी। And this strengthened the Lord, और इस ताकत से although his sweat was turning into blood. उनका जो पसीना था वो खून में बदलाव हो रहा था। But as the angel strengthened him, जैसे स्वर्गदूत ने उसको सहारा दिया, ताकत दी। verse 44 says, 44 वचन कहता है, he prayed more earnestly. वो उसने प्रभु यीशु ने और जोश से प्रार्थना की। His sweat became like great drops of blood falling down on ground. और उसका जो पसीना था वो मानो खून के बूंदों जैसा जमीन पे गिरने लगा। So we see, beloved, how the angels ministered even to our Lord Jesus. और हमने देखा कि कैसे स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु के जीवन में सेविकाई की। During his temptation, जब उसको जो परीक्षा आई थी तभी, in Gethsemane, the lowest point of his life before going to the cross, गेत्सेमनी में जब उसका जीवन का सबसे वो एकदम बुरा समय था उस समय पर भी। and now we see that when Lord Jesus died, और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मर गए, the first message of the resurrection was given by the angel to the sisters Mary Magdalene and the other Mary. तो पहला जो संदेश था पुनरुत्थान का वो स्वर्गदूत ने दिया मेरी मगदलीन को। It says Matthew 28 verse 2 to 7. ये मत्ती 28 2 से 7 वचन में लिखा है। And an angel of the Lord came from heaven, और एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया, and there was a great earthquake, beloved. और वहां पे एक भूकंप हुआ प्यारों। And this angel's countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. और उस स्वर्गदूत का रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र बर्फ के समान उज्जवल थे। And the guards shook for fear of him and became like dead men. और जो पहरेदार थे वो कांप उठे और मुर्दों के समान गिर गए। But an angel said to the woman, लेकिन वो स्वर्गदूत ने वो स्त्रियों से कहा, do not be afraid, कि घबराओ मत, for I know that you seek Jesus was crucified. क्योंकि तुम प्रभु यीशु को ढूंढ रहे हो जो उसका क्रूस पर चढ़ा गया। He is not here, वो यहाँ पे नहीं है, for he is risen as he said. क्योंकि वो उठ चुका, उसका पुनरुत्थान हो चुका है। Come see the place where the Lord lay, आइए वो जगह देख लेना जहाँ पर प्रभु था, and go quickly, और जाओ जल्दी से, tell his disciples और उसके शिष्यों को कहो that he is risen from the dead कि वो मुर्दों से जी उठा है and is going before you into Galilee. और वो तुम्हारे पहले गलीली में जाएगा, There you'll see him. और वहाँ पे तुम लोग उसे देखोगे। Behold, I have told you. और हमने ये बात तुमसे कही है। So see, beloved, the angel was so powerful. तो देखिए ये स्वर्गदूत कितना सामर्थी था। There was an earthquake. एक वहाँ पे भूकंप आया, His clothes was like lightning, white as snow. और उसके कपड़े एकदम बिजली के समान और एकदम श्वेत थे। And the guards fell in fear. और जो पहरेदार थे वो घबरा के गिर गए। But he recognized God's disciples.
लेकिन वो स्वर्गदूत ने प्रभु के चेलों को पहचाना। He said, "Do not be afraid." उसने कहा कि मत डर। So the angel knows who belong to God and do not belong to God. तो स्वर्गदूत जानते हैं कि कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है। And he gives the good news और उसने सुसमाचार दिया है that Jesus is risen. कि प्रभु यीशु जी उठा है। Go to Galilee जाओ, गलीली में जाओ and tell your other brothers and sisters also. और तेरे दूसरे भाई बहनों को भी बताओ। So beloved, we are stopping over here. सो हम इसी जगह पर रुक जाते हैं। The third topic will be very, very powerful. और तीसरा जो भाग है वो बहुत ही सामर्थ्य होगा। You will know how you can assign the angels. तो आप जानोगे कि कैसे आप स्वर्गदूतों को कैसे कार्यों में शामिल करोगे। So beloved, don't miss it. तो आप इसे कृपया करके सुने बिना रहना नहीं। It will bring a great revelation and a great understanding of the angels as never before. और ये स्वर्गदूतों के प्रकाशन और समझ में एक नई समझ लाएगा जैसे पहले कभी नहीं आपके पास होगी। फादर, पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा पिता। प्रभु, ये वचन आपने में दिया, पवित्र आत्मा आपने सिखाया प्रभु, और आपने मेरे पत्नी को मदद के अनुवाद करने में। हम सारा गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा तेरे बच्चे को स्वर्गदूतों के बारे में नई ज्ञान, नई समझ दे प्रभु। और पिता, ताकि हम तेरे स्वर्गदूतों के साथ में इस पृथ्वी पर तेरे राज्य को बढ़ाए और प्रभु यीशु के नाम की बड़ी महिमा करे। पिता, हम तुझे सारा गौरव महिमा देते हैं प्रभु। इस वचन को हर एक के जीवनों पर तेरे लहू से, तेरे आत्मा से और तेरे आशीष और अभिषेक उनके जीवनों पर लगा देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हो, तुझे धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। ये वचन 1000 गुना फल लाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।